Dear students, Assalamu alaikum. Today I will be covering your experiment number 10 of your Digital Logic Design Lab, and its title is Analysis of RS Flip-Flop using NAND and NOR gates. Now this lab is a bit different in concept than the previous combinational circuits that you have been performing because the flip-flop is not basically a combinational circuit, it is a sequential circuit. I will let you know about this in detail. So let's move forward. The components you will be requiring are, obviously, since you are going to implement this using the universal NAND and NOR gates, so you will require NAND and NOR gates ICs and a virtual breadboard which is available in your multisim. Now the logic circuits that incorporate memory cells are called sequential logic circuits. Now what's special about sequential logic circuits is that their output depends upon the present input and also on the previous values of the input and the output, past output and past input. And also they require a clock or a timing generator circuit for their operation. Now as I said before that a flip-flop or a latch is basically a sequential circuit. So there is a slight difference between a latch and a flip-flop as well, and you will be implementing an SR latch or an RS latch in this experiment. I will give you a better idea about this this way. Now flip-flop is commonly used in context of the circuits that they simply flip and flop back and forth between two states. What does two states means? That flip-flop is basically a bistable multi-vibrator. I have mentioned here a multi-vibrator is basically a device that allows the output to have two possible states, and a bistable multi-vibrator is actually a thing that allows both of the outputs to be in stable state. For example, you have already gone through a 555 timer IC, that is a multi-stable that is a multi-vibrator, A-stable multi-vibrator. Similarly, we have a monostable multi-vibrator. So you will learn about these things in detail in your theory lectures, and I will give you an idea about what's the difference between a latch and a flip-flop. Now historically the flip-flop was the common term which was applied both to a latch and a flip-flop. However, latch में difference एक मामूली सा ये है that, for example, I have something like this. This is a black box representing a flip-flop or a latch, an RS latch, and it has two stable outputs, Q and Q dash, and both of these outputs are complement to each other. Now this is a condition. ये इसकी एक basic condition है जो कि एक flip flop होने के लिए इसको requirement पूरी करनी है कि it has two outputs and both of these outputs are complement to each other, and both of these outputs are stable as well. तो latch में difference ये है that let's suppose R and S, since a flip-flop is basically a memory building block of memory unit. Building block of memory unit का मतलब ये हुआ that it can actually store a memory, कोई भी, लेकिन कंडीशन ये है that a single bit, one bit मेमोरी स्टोर करेगा ये, एंड वन बिट मेमोरी स्टोर अगर ये कर सकता है तो दैट मीन्स दैट ये मल्टीपल बिट्स भी स्टोर कर सकता है, लेकिन फॉर मल्टीपल बिट्स वी रिक्वायर मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स और मल्टीपल लैचेस. एंड एक यहाँ पर टर्म मैंने यहाँ मेंशन की हुई है दैट लैच रेफर्स टू लेवल ट्रिगर्ड वर्जन्स एंड फ्लिप फ्लॉप रेफर टू एज ट्रिगर्ड वर्जन्स. नाउ लेट्स सपोज हमारे पास आउटपुट के ऊपर 0 और 1 आ रहा है
and this output is being held for some time, और somehow और इनपुट के ऊपर आर एस के ऊपर somehow कोई भी वैल्यूज़ हैं, लेट्स सपोज 1 और 0 है, एंड ये वैल्यूज़ जब तक चेंज नहीं होंगी, आउटपुट की वैल्यूज़ चेंज नहीं होगी, दैट मीन्स दैट दिस फ्लिप फ्लॉप इज़ एक्चुअली और दिस लैच इज़ एक्चुअली बिहेविंग एज अ मेमोरी यूनिट अनलेस एंड अनटिल द वैल्यूज़ एट द इनपुट्स आर सेम. बट somehow अगर R और S की वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, if they are connected to outputs of some other circuit, then that means that outputs change हो जाएंगी. Output change होने का मतलब ये है कि this flip flop is no longer operating as a memory unit and it is no longer holding the same previous data. Now it will be holding another new data. यानी अब इसकी memory change हो गई है. Now the important thing to know here is that अगर हम R और S की इनपुट वैल्यूज़ इंटेंशनली कंट्रोल नहीं कर रहे एंड समहाउ दे आर अनइंटेंशनली बीइंग चेंज्ड, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद या किसी आउटपुट के चेंज होने के बाद R और S की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं विदाउट आवर इंटेंशन, देन दैट मीन्स दैट दिस इज़ अ लेवल ट्रिगर्ड सिनेरियो. डेट हमने इंटेंशनली भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, या अनइंटेंशनली भी कर सकते हैं. तो आर और एस की वैल्यूज़ जो है वो हमने लेवल ट्रिगर्ड सिनेरियो के अंदर हम चेंज कर सकते हैं. नाउ अगर लेवल ट्रिगर्ड है आर और एस की इनपुट की वैल्यूज़, देन दैट इज़ इन दैट केस हम इसी सेम सर्किट को एक लैच बोलते हैं. Latch means that it is going to operate as a latch, that is it will hold on to input जो भी इस black box के अंदर data पड़ा हुआ है उसको वो hold करेगा unless or until some changes are made. But however there is another input, a clock. एक क्लॉक हम अप्लाई करते हैं, क्लॉक सिग्नल हम अप्लाई कर देते हैं, एंड आर और एस की वैल्यू जो है वो इस क्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रही है. दैट वेन एवर द एज शिफ्ट्स, क्लॉक का एज जब शिफ्ट होगा तब ही आर और एस की वैल्यू चेंज होगी. दैट मीन्स दैट दिस इज़ अ मोर कंट्रोल्ड सिग्नल, एंड क्लॉक हम अपनी मर्ज़ी से डिफाइन कर सकते हैं दैट व्हेन द एज शुड बी चेंज्ड. दिस मीन्स दैट दिस इज़ एन एज ट्रिगर्ड वर्जन ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप, और इस केस में हम इसको फ्लिप फ्लॉप ही बोलते हैं, इसको हम लैच नहीं बोलते. सो ऑपरेशन सेम है, सर्किट भी सेम है, नथिंग इज़ डिफरेंट, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट में अ बिट डिफरेंट है और एप्लीकेशन में थोड़ा सा डिफरेंट है. तो दैट्स वाई वी अप्लाई अ लैच टू अ ट्रिवियल वर्जन जो कि हम इस लैब में इम्प्लीमेंट करेंगे. दैट्स वाई आई हैव कॉल्ड इट एन एस आर लैच और एन आर एस लैच, इसको हम बोलते हैं. और फ्लिप फ्लॉप अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो दैट विल बी a more sophisticated manner जिस तरह हम इसको अप्लाई करना चाहें. और सेकेंडली एस आर लैच के बारे में अगर हम बात करें तो एस स्टैंड्स फॉर सेट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया, एंड आर स्टैंड्स फॉर रीसेट. दैट मीन हम दो इनपुट्स ले रहे हैं, वन ऑफ देम इज़ अ रीसेट एंड द अदर वन इज़ द सेट. देयर आर टू बेसिक मेथड्स to implement an SR latch. One is the NAND gate scenario and other is the NOR gate scenario. ये दो major methods हैं. Apart from these we can also apply AND or NOT as well, but however the most common practice is the minimum number of gates को use करते हुए हम SR latch अगर बना सकते हैं तो using these universal gates हैं, that is NAND and NOR. So first example I will give you about how I am going to make an SR latch, and that is a memory unit, using two NOR gates. इसका circuit यहाँ पर बना हुआ है. This circuit is pretty simple. It has two, as I previously said, that this is a sequential circuit and it is based on the previous past inputs and past outputs. आउटपुट्स जो हैं, जो न्यू आउटपुट्स हैं Q और Q डैश, ये सिर्फ और सिर्फ करंट यानी कि R और S के ऊपर, करंट इनपुट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ये प्रीवियस इनपुट्स और प्रीवियस आउटपुट्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है. सो दैट्स वाई आई हैव टेकन फीडबैक्स बोथ फ्रॉम द आउटपुट्स एंड अप्लाइड बैक टू द इनपुट. That's how
this SR latch has been constructed. So अब इसके अंदर इसको इम्पोर्टेंट, अब इसको ये एक मेमोरी यूनिट के तौर पर ऑपरेट कैसे कर रहा है, तो इसको हम देखते हैं. इसकी थोड़ी सी हम वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं. आई हैव मेड a NOR gate truth table here, and ये truth table हमें क्या बता रहा है, that सिर्फ इनपुट्स की वैल्यूज़ अगर 0 0 हैं, ओनली इन दैट केस द आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी 0. तो आई हैव मेंशन्ड हियर 3 केसेस. इन 3 केसेस के ऊपर हम देखेंगे कि ये इस सर्किट का बिहेवियर किस तरह का है. Because since it is a sequential circuit, so its behavior is a bit different from typical combinational circuit. तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जिसके अंदर हम R को 0 रखते हैं और S को 1 रखते हैं. One more thing that I want to mention here, that reset का मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इन दैट केस Q जो हमारी मेन आउटपुट है दैट विल बिकम 0. इट विल, यानी कि ये मेन आउटपुट की Q की वैल्यू को रीसेट कर देगा टू 0. एंड सेट की वैल्यू अगर 1 है तो Q जो मेन आउटपुट है इट विल बिकम 1. ये हमारी इनिशियल अजम्पशन है. इसको हम प्रूफ भी करके देखेंगे कि आइदर इज़ इट वर्किंग दिस वे और नॉट. तो लेट्स सपोज हमने फर्स्ट केस के अंदर R को 0 रखा है और S को 1 रखा है. R is 0 and S is 1. Now looking at the truth table of a NOR gate, we can see that whenever any of the input is high, the output is 0. यानी A और B में से कोई एक भी अगर हाई होती है तो आउटपुट 0 ही होती है. तो विदाउट लुकिंग एट, अब हम यहाँ पर R को नहीं देखते हैं, हम S को देखते हैं. सिर्फ S की वैल्यू है जो कि 1 है. ये इस वक्त इनिशियल कंडीशन है बिकॉज वी डोंट हैव एनी फीडबैक राइट नाउ. तो S की वैल्यू जो है वो 1 है. और विदाउट लुकिंग एट व्हाट्स एट द अदर इनपुट, वी आर अज्यूमिंग दैट आउटपुट शुड बी 0 बिकॉज हमारा ट्रुथ टेबल यही बता रहा है. नॉर की आउटपुट अगर यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू भी होगी तब भी इन एनी केस इट्स आउटपुट विल बी 0. एंड दिस 0 अगर इसको हम फीडबैक पर लेकर जाते हैं यहाँ पर, तो R की वैल्यू ऑलरेडी 0 है. द अदर इनपुट बिकम्स, द न्यू इनपुट बिकम्स 0 हियर, एंड 0 0 की आउटपुट यहाँ नॉर गेट में 1 आ रही है. सो दिस शुड बी 1 हियर. Now this 1 again if comes back as feedback here 1 1. Now 1 1 becomes 0. So this means that our condition is being satisfied. हम अब ये assume कर सकते हैं that Q की value, if R is 0 and S is 1, then Q should be 1 and Q dash should be 0. Right? अब हम देखना चाह रहे हैं कि either हम अगर इसको एज अ मेमोरी यूनिट ऑपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते. तो इन्हीं एक कंडीशन है मेमोरी की जिसके अंदर बोथ इनपुट्स 0 हों. तो हम उसको टेस्ट करते हैं दैट मैंने अब R और S की आउटपुट्स हमारे पास क्या थी 1 एंड 0. ये आउटपुट्स अभी इस वक्त मौजूद हैं और मैंने R और S की जो हमने इनिशियल कंडीशन थी R इक्वल टू 0 और S इक्वल्स टू 1, उसको मैंने रिमूव कर दिया. एंड नाउ आई हैव अगेन अप्लाइड R इक्वल्स 0 S इक्वल्स 0. अब मैंने R और S दोनों की वैल्यूज़ को 0 कर दिया. अब मैं देखना चाह रही हूँ कि आइदर इस कंडीशन के ऊपर ये एज अ मेमोरी यूनिट ऑपरेट कर रहा है या नहीं. नाउ 1 फीडबैक होकर यहाँ आ रहा है, राइट, एंड 0 1 की आउटपुट होनी चाहिए 0, राइट, एंड दिस 0 गोज़ बैक हियर एंड 0 0 की आउटपुट होनी चाहिए 1. सो दिस मीन्स कि हमारी आउटपुट, अगर हमने इनपुट को R इक्वल 0 S इक्वल 0 कर दिया, दैन दैट मीन्स दैट आउटपुट इज़ बीइंग हेल्ड. आउटपुट चेंज नहीं हुई. सो आउट Q इक्वल्स 1 ही है एंड Q कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू 0. दिस मीन्स इस कंडीशन को हम मेमोरी बोलते हैं.
या होल्ड कंडीशन बोलते हैं, दैट इट इज़ एक्चुअली होल्डिंग द प्रीवियस डाटा। जो हमने प्रीवियस आउटपुट रिसीव की थी वही आउटपुट अभी भी है। तो whenever you wish to make this circuit behave as a memory unit, then you remove the previous input and apply 0 0 at the input. तो as long as inputs 0 0 हैं, r equal 0 और s equal 0 है, that means कि अगर क्लॉक सिग्नल होगा तो क्लॉक सिग्नल में लेवल 0 ही होना चाहिए unless and until an edge is triggered। जब एज ट्रिगर हो जाएगी, इन दैट केस आपके पास ये मेमोरी यूनिट के तौर पे बिहेव नहीं करेगा, इनपुट चेंज हो जाएगी। नाउ केस 2 देखते हैं। केस 2 में हम लेट सपोज अब हम वैल्यूज़ चेंज करते हैं, r becomes 1, s becomes 0। तो I remove this previous data and I work on with the new data। r is 1 and s is 0। अब इनिशियल जो हमने यहाँ पर अजम्पशन की थी पहले वाली तो प्रूव हो गई कि सेट को जब हमने 1 किया, सेट को हमने 1 किया तो Q 1 आ गई। सेकंड कंडीशन हमने इनिशियल अजम्पशन की है कि व्हेन रीसेट इज़ 1 देन Q शुड बी 0। तो इसको हम अभी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर नॉर गेट, व्हेन एवर एनी इनपुट इज़ 1 आउटपुट इज़ 0। तो रीसेट की वैल्यू 1 है, देन आउटपुट शुड बी 0। Then this 0 comes back here and 0 0 becomes 1। 1 goes back here and 1 1 की output 0 है। So this is again proving our fact that Q equals 0 and S equals 1। Again I apply R equals 0। मैंने initial जो inputs दी हुई थी उनको remove कर दिया, आउटपुट्स को अभी मैंने नहीं चेंज किया बिकॉज आई वॉन्ट टू ऑपरेट दिस नैंड गेट नॉर गेट एज अ मेमोरी यूनिट। तो मैंने आर को भी 0 कर दिया एंड एस को भी 0 कर दिया। सो आई एम अप्लाइंग अगेन हियर आर इक्वल्स 0, एस इक्वल्स 0। देन दैट केस क्यू क्या होता है एंड क्यू डैश क्या होता है। तो लेट्स सी, इस वक्त क्यू में 0 पड़ा है एंड इट इज़ गोइंग बैक एज फीडबैक हियर एंड 0 0 की आउटपुट है 1 एंड 1 इज़ गोइंग बैक हियर एंड 0 1 की आउटपुट होनी चाहिए 0। सो दिस मीन्स दैट क्यू की वैल्यू और क्यू डैश की वैल्यू चेंज नहीं हुई। दिस इज अगेंस्ट द सेम 0 एंड 1 एंड दिस इज आवर मेमोरी। नाउ देयर इज इम्पॉर्टेंट थर्ड केस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको मैं रिमूव कर रही हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू माई थर्ड केस। थर्ड केस के अंदर आई एम टेकिंग ऑन आर इक्वल्स 1 एंड एस इक्वल्स 1। ये दोनों केसेस प्रीवियस केसेस से डिफरेंट सिनेरियो है एंड इसकी आउटपुट्स भी काफ़ी फ़र्क आती हैं। दिस इज़ मेमोरी, राइट, एंड आई वॉन्ट टू सी दैट व्हाट हैपन्स टू क्यू एंड व्हाट हैपन्स टू क्यू डैश इन दिस केस। मैंने आर को भी 1 कर दिया, एस को भी 1 कर दिया। आउटपुट्स क्या होनी चाहिए, अदर इनपुट जो भी हो आउटपुट शुड बी 0 एंड अदर इनपुट यहाँ पे भी जो हो 0। नाउ क्यू और क्यू डैश बोथ केसेस के अंदर हमारे पास आउटपुट 0 आ गई, विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन। दिस मीन्स दैट दिस इज़ नॉट फुलफिलिंग द कंडीशन जो हमने इनिशियली सेट की थी फॉर दिस फ्लिप फ्लॉप, दैट क्यू एंड क्यू डैश बोथ शुड बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। सो दिस मीन्स दैट हमारे पास यहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्शन है इन दिस केस when I am applying both r equals to 1 and s equals to 1. So this is not the only problem here. The other problem that happens here is that if I try to apply memory r equals 0 and s equals, yani matlab I am trying to actually hold this data q equals to 0 and q complement equals to 0 and s equals 0। इन दोनों को अब मैं अप्लाई कर रही हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इनपुट चेंज कर देती हूँ, आउटपुट को अभी मैं नहीं चेंज कर रही। तो r becomes 0 and s becomes 0. Now 0 goes back here. Now output should be 1 because now this is again a contradiction here. 0 0 की output 1 होती है and similarly this 0 this 1 goes back here, 1 goes back here and again the output should be 0.
यानी अब या अगर हम प्रीवियसली भी लेते हैं मतलब हमारे पास अब आ रही है न्यू आउटपुट आ रही है q इक्वल्स 0 एंड q डैश इक्वल्स 1. दिस मीन्स दैट इसने प्रीवियस डेटा अपना होल्ड ही नहीं किया. दिस मीन्स दैट दिस इज़ नॉट ऑपरेटिंग एज अ मेमोरी. सेकेंडली हम एक और चीज़ भी देखते हैं दैट हमने स्टार्ट किया q से. मैंने अभी मेमोरी को 0 ही रखा है. मैंने अब पहले मैंने इस 0 को मैंने यहाँ पर फीडबैक किया था. इन दैट केस हमारे पास q डैश 1 बन गया था. बट हाउएवर इफ़ आई ट्राई फ्रॉम गेटिंग फीडबैक फ्रॉम q डैश, तो ये 0 अगर यहाँ आता है तो इन दिस केस 1 comes up here and this 1 goes back to as feedback and the new output becomes 0. तो अगर हम एनालिसिस अपना q डैश की साइड से स्टार्ट करते हैं तो इन दैट केस q becomes 1 and q dash becomes 0. So this is another a huge contradiction here. So इन contradictions की वजह से this condition या this case is one that we don't use or we avoid this case, because in this case this flip-flop will not behave as a normal flip-flop. और इस बिहेवियर को हम एक ट्रुथ टेबल की फॉर्म में थोड़ा सा वाइंड अप कर लेते हैं. in fact I have mentioned here in your slides as well that अगर आपके पास है inputs R and S for ये अभी NOR gates की बात हो रही है Q and Q dash. इनिशियली हमने R को 0 रखा, S को 1 रखा और हम यहाँ पर एक कमेंट्स लिखते हैं that how is it actually behaving. तो Q की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड Q डैश की हो जाएगी 0. ये हमने इनिशियली देखा एंड दिस इज़ एक्चुअली बिहेविंग एज सेट ऑपरेशन. व्हेन हमने इसको मेमोरी यूनिट के तौर पे अप्लाई किया तो आउटपुट डजंट चेंज एंड दिस इज़ बिहेविंग एज मेमोरी. एंड नेक्स्ट हमने इनपुट्स चेंज की एंड आउटपुट क्या बन गई 0 and 1. दिस ऑपरेशन इज़ अ रीसेट and again I try to apply memory, then हम आउटपुट हमारे पास आएगी 0 1 सेम आउटपुट रहेगी. दिस इज़ अगेन मेमोरी. एंड अगर हम इनपुट चेंज करके 1 1 कर देते हैं देन आउटपुट पे कुछ भी प्रॉपर नहीं आएगा. यानी इस केस के अंदर हमारे पास 0 0 आ रहा है इस पर्टिकुलर केस में. तो दिस इज़ something we don't use or we avoid. Similarly अगर हम इसके ऊपर दोबारा मेमोरी के तौर पर अप्लाई करते हैं this is again a contradiction, not used. So ये हो गई NOR gate की example. So let's move back to our स्लाइड्स एंड इसमें मैंने यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट भी करके बता दिया कि दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड अ फ्लिप फ्लॉप एंड व्हाट डज आर स्टैंड फॉर, व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर. and this is a symbol of SR latch and I've already explained this in the previous blackboard. So इसके अंदर मैंने यहाँ पर ऑपरेशन मोड का कंपैरिजन किया है. दैट RS फ्लिप फ्लॉप यूजिंग NOR गेट्स तो हमने देख लिया जिसके अंदर 0 0 एज अ मेमोरी ऑपरेट कर रही है एंड 1 1 इज़ नॉट यूज्ड. और बाकी चीज़ें सेम हैं. जब हमारा S1 है तो सेट ऑपरेशन है एंड व्हेन R इज़ 1 देन रीसेट ऑपरेशन है. एंड यूजिंग NAND गेट्स चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं. इन दिस केस वी हैव 0 0 एज द केस विच इज़ नॉट यूज्ड and 1 1 is the case when it is operating as a memory. बाकी चीज़ें सेम हैं. when R is 0 then it is reset and when S is 1 it is set. अब this is a sort of shortcoming in this flip flop that RS flip flop के ऊपर जब भी हमने कुछ भी ऑपरेशन करना है या कुछ भी हमने मेमोरी स्टोर करनी है किसी भी सर्किटरी के अंदर डिज़ाइन के अंदर हम RS flip flop यूज़ करेंगे या RS latch यूज़ करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है that we need to know beforehand that either it is being constructed using NOR gates or NAND gates.
सो दिस मीन्स दैट हमारे पास इसके अंदर एक लिमिटेशन है आर एस फ्लिप फ्लॉप के अंदर. इस लिमिटेशन को हम फर्दर फ्लिप फ्लॉप्स जो डिज़ाइन हुए उसके अंदर हमने इसको काउंटर भी किया है. सो यू विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस इन लेटर स्लाइड्स. तो नैंड गेट का जो हमारे पास ऑपरेशन है, एंड आई सजेस्ट दैट यू go through the whole truth table of the NAND gates by yourself and then let me know that इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होता है या नहीं. ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट NOR गेट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह से फंक्शनैलिटी उसकी डिज़ाइन करते हैं. यूजिंग NAND गेट्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया. देन व्हेन R इज़ 0 एंड S इज़ 1 देन क्या होता है. सिमिलरली R इज़ 1 और S इज़ 1 तब क्या होगा. और आप इसको जो है मेमोरी यूनिट के तौर पर अगर यूज़ करना है तो आपको R और 1 S दोनों को 1 रखना पड़ेगा, राइट. तो इसको आप खुद से वर्कआउट करें एंड देन लेट मी नो इन योर फर्दर session. And what are your lab tasks? Your lab task is to implement the given circuits with NOR and NAND gates on multisim using the relevant ICs. That you have to implement the same circuit. This is upon you that how you are going to actually implement this. And fill in the truth tables. आपके पास जो ये truth tables हैं आपने इन दोनों को fill करना है, NOR gates का भी और NAND gate का भी. एंड लेट मी नो दैट आपका एग्जैक्टली वैसा ही ट्रुथ टेबल आ रहा है जो कि हमने थियोरेटिकली देखा, या इज इट अ बिट डिफरेंट फ्रॉम योर प्रीवियस सिनेरियोस. And after that you have to submit your lab report based on your findings to your lab teacher. And I hope that you have ample understanding of the SR flip-flop or RS flip-flop through this lab. I will see you in your next lab inshallah. Allah Hafiz.